Hello everyone, class 7 science chapter 9. So today we completed exercise of this lesson. So here is this exercise. Take the most suitable answers in question 1 and 2. First आपका है in addition the rock particles the soil contain. थर्ड नंबर इसका होगा mineral organic matter and air and water. फिर सेकंड नंबर है आपका the water holding capacity is highest in clayey soil. फिर थर्ड नंबर है आपका मैच द कॉलम. ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये रहा. फर्स्ट नंबर है अ होम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल काइंड्स ऑफ रॉक. अपर लेयर ऑफ सॉयल डार्क इन कलर, सैंडी सॉयल लार्ज पार्टिकल, मिडल लेयर ऑफ सॉयल लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, क्लेई सॉयल स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक टाइट. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्सप्लेन हाउ सॉयल इज फॉर्म. सॉयल कैसे बनता है. द सॉयल इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. सॉयल वेदरिंग प्रोसेस थ्रू बनता है. इन विच द रॉक ब्रेक डाउन. इसमें क्या होता है, रॉक ब्रेक डाउन होता है बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर एंड क्लाइमेट. It is very slow process and big rocks get converted into the soil. For fifth number question, how is clay soil useful for crops? Clay soil is very useful for crops because it has very good water retaining capacity. Second number, this soil is rich in humus and is very fertile. Third number, it contain useful organic mineral. These properties of loamy soil is very suitable for growing crops. Question number 6, list the difference between clayey and sandy soil. Sandy soil proportion of fine particle is large, has least percolation rate of water, has good water holding capacity. Clayey का proportion of big particle is large, has largest percolation rate of water, has poor water holding capacity. फिर आपका है sketch the cross section of soil and label the various layer. इसमें आपको ये डायग्राम बनाना है, सॉयल प्रोफाइल का डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है. और फिर थोड़ा थोड़ा आपको हर लेयर के बारे में लिखना है. अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉयल इज कॉल्ड द सॉयल प्रोफाइल. ईच लेयर डिफर्स इन फील टेक्सचर सॉयल डिपेक्ट एंड केमिकल कंपोजिशन. दिस लेयर आर रिफर्ड टू एज हॉरिजॉन. फर्स्ट नंबर है आपका द अपर हॉरिजॉन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स. द ह्यूमस मेक द सॉयल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट. दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट porous and can retain more water. It is called the top soil or a horizon. Second number है the next layer has a lesser amount of humus but more of mineral. This layer is generally harder and more compact and is called the B horizon or the middle layer. फिर थर्ड नंबर है आपका द थर्ड लेयर इज द सी horizon which is made up of small lumps of rocks and cracks or rips. Below this layer is the bedrock which is hard and difficult to dig with a shepherd. ये आपको डायग्राम बनाना है और ये पूरा लिखना भी है इसके साथ. फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. Razia conducted an experiment in the field related to the rate of percolation. She observed that took 40 minutes for 200 ml of water to percolate through the soil sample. Calculate the rate of percolation. अमाउंट ऑफ पर्कुलेट वाटर कितना है 200 ml है और टाइम कितना लग रहा है उसको एब्जॉर्ब करने में 40 मिनट लग रहा है. तो वी नो दैट रेट ऑफ पर्कुलेशन मिनट पर ml पर मिनट इक्वल कितना होता है अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन पर्कुलेशन टाइम. तो 200 ml अपॉन 40 मिनट्स होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 ml पर मिनट, यानी हर मिनट में 5 ml पानी एब्जॉर्ब हो रहा है. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9. एक्सप्लेन हाउ सॉयल पॉल्यूशन एंड सॉयल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड. स्टेप्स फॉर प्रिवेंटिंग सॉयल पॉल्यूशन एंड सॉयल इरोजन. प्लांटेशन, मतलब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम सॉयल पॉल्यूशन और सॉयल इरोजन से बच सके. प्लांटेशन शुड बी इनकरेज बिकॉज प्लांट रूट्स firmly bind the soil and help in preventing erosion. Methods like crop rotation and mixed farming should be followed. Use of organic fertilizer and manure instead of synthetic. Pesticide and insecticide should be used in limited quantity and find natural way to prevent it. Plastic bag should be banned and it doesn't decompose and gives rise to soil pollution. Sixth number, industrial waste should be dumped directly as it is kill necessary microorganisms of soil. फिर क्वेश्चन नंबर आपका 9 में आपका 10 में क्रॉसवर्ड दिया हुआ है. क्रॉसवर्ड में आपको क्लू दिए गए हैं, क्लू को पढ़ के आपको आंसर लिखना है.
जैसे कि ये है आपका फर्स्ट नंबर, डाउन में है, इन डिजर्ट सॉइल इरोजन ऑकर्स थ्रू विंड। फिर सेकंड नंबर है आपका, प्लांटेशन प्रिवेंट इट इरोजन। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, फर्स्ट में विंड होगा, सेकंड में इरोजन, थर्ड में होगा वीट, फोर्थ में होगा सैंडी, फिफ्थ में होगा पॉलीथीन प्रोफाइल, सेवन्थ में होगा अर्थवर्म, सिक्स में होगा क्ले। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका लेसन 9 का एक्सरसाइज। और आई ऑल्सो सेंड PDF फाइल जिससे आप इसको अच्छे से देख कर लिख सकते हो। सिर्फ ज़्यादा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं, समझ के करेंगे तो सब इजी है आपके लिए। इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दूं कि इसमें आपकी बुक में चैप्टर में ही एक बॉक्स में दिया होगा सॉइल इरोजन के बारे में, तो उसको आपको लिखना है ना। जब चैप्टर आप बुक में देखेंगे, चैप्टर जब ख़त्म होता है तो लास्ट एक्सरसाइज के पहले वाले पेज में आपको दिया होगा सॉइल इरोजन के बारे में बॉक्स में, तो आपको सॉइल इरोजन को वो पूरा पैराग्राफ लिखना है, उसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और सारे बच्चे कॉपी कंप्लीट करने के बाद मुझे पिक्स सेंड करेंगे, ओके।